ओके, सबको पुनः नमस्कार, कोरोना नमस्कार. In last class we have studied about incomplete dominance, codominance, then test cross and back cross. Today the topic of our discussion, it is multiple alleles. Multiple alleles, a very important concept we people are going to discuss here. Allele, as I have told you earlier, जैसा मैंने बताया है बेटा allele क्या होते हैं. What are alleles? Alleles are the thing, these are mutated forms, ध्यान से देखिएगा, mutated forms of a gene. The first gene which came or which got originated on this earth for any character, that is called wild gene. उसे वाइल्ड जीन कहा जाएगा. इस वाइल्ड जीन की जो म्यूटेटेड फॉर्म है, मैंने उस दिन भी कहा था, म्यूटेशन जो वर्ड है वो क्या है. द म्यूटेशन इट मीन्स चेंजेस, बदलाव. हाउ दे बिकम ऑपरेशनल, इट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन इन म्यूटेशन. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन म्यूटेशंस. कैसे म्यूटेशंस होती हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द म्यूटेशन इन द म्यूटेशन क्लास. व्हाट अभी तक मैंने थोड़ा सा आपको उस दिन बताया था कि इवन बाय चेंजिंग एन बेस सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए विल चेंज द जीन, दैट विल बी अ न्यू जीन. जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर ये डीएनए है और इसमें सीक्वेंस है एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, देन गुआनिन साइटोसिन, guanine cytosine, cytosine guanine, any of the sequence it may have, adenine thymine. Suppose this is the wild gene. Suppose this is wild gene A. Now, if due to some reasons, they may be environmental reason, there may be the application of some chemical, there are so many reasons. There may be the exposure to the X-rays, हो सकता है एक्सरेज इसके ऊपर गिरा हो, एक्सपोजर हुआ हो, किसी भी कारण से, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण से. सपोज कीजिए कि यहां पे जो जीसी है, इट बिकेम ए एंड टी. नाउ दिस डीएनए विल बिकेम लाइक दिस. द सीक्वेंस इज adenine thymine, thymine adenine, cytosine guanine. Now here it is not guanine cytosine, it became adenine thymine. Okay, then guanine cytosine, cytosine guanine, adenine thymine. The rest of the sequence may be similar in both. What this change of this particular sequence, it may result in the formation of a more one form of this wild gene, and this is called allele. Suppose it is allele A. Usually they are recessive. Wild gene usually they are dominant, but in certain cases, as we will study in the blood groups, the wild gene is recessive. Otherwise they are dominant and the mutations are recessive. Okay? पर वो बात की बात वो डिस्कशन करूंगा, पर मैं अभी थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि एलील्स क्या होते हैं. तो एलील्स कुछ नहीं है, एक वाइल्ड जीन के बदले हुए रूप है. ओके, मेंडल एज ही स्टडीड इन द पी प्लांट, इन पी प्लांट आई हैव टोल्ड यू दैट मेंडल कंक्लूडेड दैट देयर कैन बी ओनली 2 एलील्स पॉसिबल. 2 possible alleles are there.
according to Mendel genetics. Now we are in the post-Mendel genetics. Now the scientists have found that there are certain characters in which the single vial gene have more than what? 2. This is very important. More than 2 alleles. एलील के लिए मैंने कहा था आपको कि these are the mutated form of a gene. कैसी फॉर्म्स? इनका मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिख रहा हूं आपको. विच कंट्रोल, एक तो चीज है कि विच कंट्रोल डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर. एक कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स को कंट्रोल करते थे. और दूसरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, they have or they occupy same locus or position over homologous chromosomes. ये दो बातें मैंने कही थी आपको एलील की जब मैंने टर्मिनोलॉजी किया है. यू कैन गो थ्रू द टर्मिनोलॉजी वीडियो वंस अगेन. तो मैंने कहा था बेटा कि ऐसे एक जीन के वो रूप जो एक गुण के अलग अलग फॉर्म्स को, जो रूप है उनको वो कंट्रोल करते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम पे उनकी पोजीशन सेम होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? नाउ इट इज न्यूअर एस्पेक्ट that scientists of the post-Mendelian era, post-Mendelian time के जो scientists हैं, they have found that single vial gene, or I can say single gene, have more than 2 alleles. That is the mutated forms. Okay? पर बच्चों अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा मल्टीपल एलील की. आपको पता है, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम खुद ब खुद ही डिराइव करेंगे डेफिनेशन. तो देखिए बेटा, इसे तो there will be a question in our mind. There should be a question in our mind. आपके दिमाग में भी एक बात आएगी कि अब प्रॉब्लम कहां है. प्रॉब्लम यहां है कि as I am saying you that the alleles they have the same position over the homologous chromosome, and every organism it have only 2 homologous chromosome particular for the characters. ये अलग बात है कि उनमें पेयर ज्यादा होंगे, पर अगर ये फर्स्ट पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो इसके ऊपर पेयर मीन 2, पेयर का मतलब ही 2 होता है. तो यहां पे आप देख रहे हैं बेटा, सिर्फ 2 ही हो पाएंगे ना क्रोमोसोम. आप दिमाग में ये प्रश्न आता है, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि नाउ वी हैव द जीन, सपोज इट इज स्मॉल आई. मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर ये जीन स्मॉल आई है और मैं बोल रहा हूं इसके जो 2 से ज्यादा एलील्स हैं, मैंने बोला था आपको कि यूजुअली जो एलील्स होते हैं प्रोसेसिव होते हैं, पर इसके केस में मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम ब्लड ग्रुप में इसको करेंगे तो मैं यहां पे एग्जांपल भी वही दे रहा हूं. यहां पे वो वाइल्ड जीन रिसेसिव है और जो इसके मल्टीपल एलील्स हैं वो है IA, IV, these 2 एलील्स. अब आप देख रहे हैं टोटल जो जीन है, एलील्स है, they are 3. One is wild. This is wild gene. For the blood group in case of human beings, बताऊंगा अभी, अभी आप चिंता ना करें. ये एक वाइल्ड जीन है, ये इसके 2 एलील हैं, टोटल 3. पर
मैंने एक बहुत बड़ा कैरेक्टर आपको बताया है, आप इस बात को याद रखें, रिमेंबर इट ऑलवेज, दैट दे हैव द सेम पोजीशन ओवर द होमोलोगस क्रोमोसोम। आप इस बात को नहीं भूलेंगे। एलील वही होगा जिसकी सेम पोजीशन होगी होमोलोगस क्रोमोसोम पे। ठीक है, आप उस वीडियो को देखें एक बार, जहां पे मैंने टर्मिनोलॉजी किया है, टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पार्ट नंबर 1 वीडियो को आप जरूर देखिएगा यूट्यूब चैनल पे मेरे पे। और आप यहां देखें, सपोज इफ इट इज IA, तो बिल्कुल सेम पोजीशन पे क्या होना चाहिए, देखिएगा, इट मे बी IA, इट मे बी IB और इट मे बी स्मॉल आई। सिमिलरली यहां पे भी, इसके ऊपर भी IA हो सकता है, IB हो सकता है, स्मॉल आई हो सकता है। बट यू शुड रिमेंबर दैट आउट ऑफ दीज 3, रिमेंबर इट, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो येलो कलर में आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का, आई एम नेमिंग इट एज A, मैं इसको A डिनोट कर रहा हूं, और जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, आई एम डिनोटिंग इट एज B। तो देखिए बेटा, A क्रोमोसोम पे, ये बात बहुत जरूरी समझने के लिए है, A क्रोमोसोम पे क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है ना, और B क्रोमोसोम जिसको मैंने डिनोट किया, दूसरे को जो मदर से आया है, A फादर से और B मदर से इनहेरिट हुआ होगा। सो B पे भी IA, IB या स्मॉल आई में से कोई एक ही हो सकता है। समझो बात को। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर हमें स्टडी कर पाएंगे एक इंडिविजुअल में, आप ध्यान रखें, किसी एक इंडिविजुअल में इनमें से कोई 2 ही एलील्स पाए जाएंगे। तो फिर तीसरा कहां होगा, तीसरा जो होगा वो किसी दूसरे इंडिविजुअल में होगा। Getting my point? What I want to say very simply that out of these 3, only 2 can be present in one individual. ये तो तीन है। अगर किसी जीन के जो एलील्स हैं वे 4 हैं, 4 हैं, 5 हैं, out of the 4, only 2 can be present in a single individual or its cell. उसके सेल्स में केवल 2 ही होंगे। अगर 5 की सीरीज है तो आउट ऑफ द 5 ओनली 2 कैन बी प्रेजेंट देयर। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है। सो नाउ आई कैन डिफाइन द मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स आर नथिंग, हमने देखा कैसे बनते हैं, ये तो म्यूटेशन से बनते हैं वाइल्ड जीन की, और वे इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। हम एक पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तब हमें एलील्स मिलेंगे सारे के सारे। एक इंडिविजुअल में तो कोई 2 ही होंगे, पर जब हम अलग अलग से करेंगे, आई विल टेल यू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। सी हियर व्हाट आर द मल्टीपल एलील्स, लेट अस सी द डेफिनेशन एस्पेक्ट इज हियर। इट इज द, और these are more than 2 mutated forms of a wild gene, you can say also gene, आप जीन भी लिख सकते हैं, पर वाइल्ड कहा जाता है जो बेसिक जीन होता है, जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। These are more than 2 mutated forms of a gene. Mutated word कर दिया ना मैंने यूज। Present in, this is very important, in different individuals of a population
ऑफ अ पॉपुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पॉपुलेशन के अलग अलग इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, एंड ऑक्युपाई सेम लोकस और पोजीशन on homologous chromosome pair. This is very important. ये डेफिनेशन हमने जितना समझा उसमें से डिराइव किया. See now the characteristics. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? What are the different characteristics of multiple alleles? The first characteristic is they occupy the same position over homologous chromosome. They occupy same position over homologous chromosome pair. HCP लिख दिया मैंने, homologous chromosome pair. सेम पोजीशन होती है बेटा. सेकेंड कैरेक्टर इज, सेकेंड वन इज only two आउट ऑफ, ये जो ज्यादा नंबर होंगे इनको मल्टीपल एलिलिक सीरीज कहा जाता है. 1 2 3 4 5 ऐसे एलिलिक सीरीज हुआ, मल्टीपल एलिलिक सीरीज. ओनली आउट ऑफ टू, only two out of multiple allelic series are present in here one individual, or I can say single individual. किसी एक इंडिविजुअल में उस मल्टीपल एलिलिक सीरीज में से केवल क्या होंगे बेटा, कोई दो ही हो पाएंगे. अब जब क्रोमोसोम अलग अलग होंगे तो गैमीट्स में जाएंगे एनाफेज में मियोसिस के, तो मल्टीपल एलिलिक सीरीज में से गैमीट के अंदर भी कोई एक ही एलील जा पाएगा. तो मैं लिख रहा हूं, थर्ड वन इज gamete receives only one multiple allele. गैमीट में भी बेटा एक ही मूव कर पाएगा, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जाएगा तो वो भी एक ही ले जाएगा. ओके, देन वन मोर फैक्टर इज देयर. इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. इन पैकेटिन स्टेज, जब पैकेटिन स्टेज होगा मियोसिस के प्रोफेज 1 का, देन देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर. नो क्रॉसिंग ओवर अक्कर बिटवीन देम. नो क्रॉसिंग ओवर अक्कर बिटवीन देम. क्लियर है? सेम पोजीशन होगी, सेम लोकस होगा. दो, जितनी भी मल्टीपल एलिलिक सीरीज है उनमें से दो ही होगा. ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. गैमीट भी एक ही रिसीव कर पाएंगे. ठीक है, और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, these genes or the alleles, different allele control the formation of different protein. आपको तो genes they will form the protein. We have studied the central dogma of information. अब जेनेटिक्स के अर्लियर वीडियोस में देखे, मैंने बताया है आपको, डीएनए विल फॉर्म डीएनए बाय द डीएनए रेप्लिकेशन, मैसेंजर आरएनए बाय द ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड ट्रांसफर आरएनए विल फॉर्म द प्रोटीन्स. This is the flow of information from DNA to the proteins. This is
सेंट्रल डोगमा ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन चलती है, ये रास्ता है उनके लिए। सो क्योंकि अलग अलग से एलील अलग अलग से प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इनकी जो एक्सप्रेशंस है, मैनिफेस्टेशंस है, वे भी अलग अलग है। तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंट alleles have different manifestations. Different alleles have different manifestation. एक और कैरेक्टर आपको बताना चाहूंगा यहां पे, वो क्या, यूजली जो आपका नॉर्मल जीन है वो डोमिनेंट होता है और बाकी जो एलील्स होते हैं वे रिसेसिव होते हैं। वाइल्ड जीन इज यूजली डोमिनेंट एंड alleles are recessive. You know what is recessive and what is dominance. Is it clear? लेकिन हर बार ही डोमिनेंट और रिसेसिवनेस का नहीं हो सकता करेक्टर. We will find certain kind of the alleles which are co-dominant or incompletely dominant or having other kind of the relationship. So sometime multiple alleles may show codominance और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा मैं अभी ब्लड ग्रुप में दोनों आपको बातें बताऊंगा, डोमिनेंस रिसेसिवनेस भी समझाऊंगा और कोडोमिनेंस भी समझाऊंगा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो these are some of the characteristics of the multiple alleles, and this is how to define the multiple alleles. Multiple alleles are more than the two mutated form of a wild gene or gene present in different individual of a population and occupy the same locus or position on homologous chromosome pair. ठीक है, बहुत जरूरी है। Characteristic, they occupy the same position over the homologous chromosome pair. Out of the multiple allelic series, only two can be present in a single individual. Gamete receive only one multiple allele. No crossing over can be possible between them. Different allele have the different manifestations due to the formation of the different proteins. Wild gene is usually dominant and alleles are recessive. Not always. मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, उसमें वो वाइल्ड जीन ही रिसेसिव है ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स में भी 13 टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम they are existing, पर हम करेंगे ABO blood group system because in Commonwealth countries it is usually accepted. Sometimes multiple allele may show codominance or incomplete dominance. So these are the characteristics of the multiple alleles. Now let us do an example. We will discuss an example of the multiple alleles, and then you will understand it that what are basically these. The example is very common. It is blood group or ABO blood group system in human beings. ध्यान से सुनेंगे. It is ABO blood group system. I mean, it is ABO blood group system in human beings. हमारे अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, Lance Steiner is the man or scientist who discovered the blood circulation and gave the concept of blood groups in human beings.
there are different 13 systems. Different 13 systems of blood groups are there. Some of them, one is ABO blood group system, one is MN blood group system, one is RH blood group system. RH तो हम भी यूज करते हैं, A पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो RH है. We will discuss it in the erythroblastis fetalis. आएगा कॉन्सेप्ट, वहां पे मैं बताऊंगा आपको. पर अभी ABO है, MN है, RH है, Lewis blood group system. There are like this, other are there, etc. are there. क्योंकि मुझे इनसे नहीं लेना देना, I have to discuss here the ABO blood group system. 13 में से मैं ABO को कराने जा रहा हूं. See here now. According to this system, okay, there are 4 blood groups, mean 4 phenotypes of blood group. अब हम जेनेटिक्स में से ब्लड ग्रुप कहेंगे. There are 4 phenotypes of blood group. Blood groups. Which one? Which one? This is blood group here. मैं एक चार्ट बनाऊंगा धीरे धीरे, यहां एक्सप्लेनेशन करता चलूंगा. The first blood group is blood group A. One is B, one is A, one is B, and one is AB, and one is having O blood group. O. Okay? 4 blood groups पाए जाते हैं ABO के अनुसार, A, B, AB and O. जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा था आपको, एक इंडिविजुअल में एक ही ब्लड ग्रुप होगा बेटा, आइदर A, आइदर B. My blood group in my family, I am explaining you. In my family, my blood group is B. My wife blood group is A. My daughter blood group is O. Okay, one of my sister having the AB. ऐसे हम जो सभी बैठे हैं अभी डिस्कशन में, मेरा B ब्लड ग्रुप है, आप में से किसी का A होगा, किसी का B होगा, किसी का AB होगा, किसी का O होगा. So there are 4 phenotypes. Now what is there in our blood which is determining our blood group? ऐसा क्या है हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमिन कर रहा है? So let us see what is the different component of blood and what is there which is determining the blood group, whether A, B, AB and O of particular individual. See here, this is blood vessel. We have the closed vascular system. We have a pale yellow color fluid. This is called plasma. This is plasma. Inside plasma there are corpuscles, cells of the blood, which are called blood cells. ध्यान से देखिएगा. Blood cells, they are of 3 types. One are called RBC, red blood cell, और एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रो जो वर्ड होता है दैट मीन रेड, साइटॉन से साइट्स, सो एरिथ्रोसाइट्स पढ़ा है अपने +1 में, ब्लड के सर्कुलेशन चैप्टर में, एनिमल फिजियोलॉजी में भी हैव स्टडीड. सेकंड वन आर WBC, व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट के लिए जो ग्रीक वर्ड है दैट इज ल्यूको, सो leukocytes, and one more are there. These are platelets, blood platelets. यहां पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा
आरबीसी के बारे में। आरबीसी वो सेल्स हैं जो डिटरमिन करेंगे क्या चीज बेटा, ब्लड ग्रुप को। यूजुअली बाइकॉन्वेक्स, इस तरह से आरबीसी होंगे यहां पे, ब्लड के प्लाज्मा में पड़े होते हैं। Every cell have a cell membrane, and we know cell membrane is made up of the phospholipid, oligosaccharide and proteins. There are some specific proteins here over these RBCs. This is RBC, red blood cell or erythrocyte. देखिए जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं विच आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बिकॉज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता में। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स है इसलिए ग्लोबुलिन कहा गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर जिस इंडिविजुअल में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगा, इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एंटीजन कहा जाता है, दे कॉल्ड एंटीजन। ऐसा इंडिविजुअल जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगा एज एन एंटीजन, ऐसी प्रोटीन होगी, दैट पर्सन हैव द ब्लड ग्रुप ए। सो मैं अब यहां पे लिख रहा हूं सेकंड चार्ट का कंपोनेंट, इट इज हैविंग एंटीजन। ओके, ब्लड ग्रुप एंटीजन। अभी तो मैं समझेंगे ब्लड ग्रुप होता क्या है, कल मैं उसकी अगले लेक्चर में उससे अगली डिस्कशन करूंगा। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसमें ए होगा बेटा, एंटीजन ए होगा, सपोज मैं यहां ए लिख देता हूं, तो इफ इट इज एंटीजन ए इज देयर, देन इंडिविजुअल इज विद द ब्लड ग्रुप ए। क्लियर? इफ द एंटीजन इज बी, ये ना हो कि क्या है, बी है। अगर उसकी आरबीसी में एंटीजन कौन सा है, मैंने इसको मैं येलो से नहीं पिंक से ही करता हूं ए को। इफ इट इज एंटीजन ए, अगर ए ना हो के क्या हो, उसके एंटीजन क्या हो, बी हो, तो वो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, बी। एंड देयर इज अ थर्ड कंडीशन where both antigen are there, A and B, on the membrane of RBC. Then that particular fellow which have A and B both, here A भी है और दूसरा कौन बेटा, B एंटीजन भी है, तो ब्लड ग्रुप होगा AB। और ऐसा इंडिविजुअल जिसकी आरबीसी पे ये स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो ही ना, कौन सी, ना तो ए हो ना ही बी हो, neither A is present nor B is present. In that case, no is present, not, जीरो को नॉट भी कहा जाता है अमेरिकन इसमें। Then it is called then it is called O ब्लड ग्रुप। जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो क्या होगा, वो ए ब्लड ग्रुप होगा, नील एंटीजन आर देयर। क्लियर है बेटा बात? तो हमें पता लग गया कि एंटीजन जो आरबीसी के ऊपर है, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वे डिसाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा इतना? सेकंड वन मोर थिंग इज देयर, व्हाट इज दैट द प्लाज्मा, the pale yellow fluid, which is 80% of our blood, it contain also some proteins, and these are called antibodies. क्या कहते हैं बेटा?
उन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, और वो प्लाज्मा के अंदर है। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन, these are on RBC's membrane, on RBC, और antibodies in plasma, in plasma। देखिएगा ध्यान से, यहां पे एक बात आप अब याद रखेंगे, नोट इट, कि नेवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, नेवर सेम एंटीजन एंड same antibodies present in an individual, कभी भी सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर किसी आदमी के अंदर, यहां पे मैं डिपिक्शन करके आपको बताऊं, अब मैं ऐसे इसको डिपिक्ट करता हूं, सपोज मैंने एंटीजन को इस तरह से ट्रायंगुलर बना दिया, इसके अंदर अगर वो एंटीजन ए है जो मैंने ट्रायंगुलर शेप में बता दिया आपको, ऐसे आरबीसी के ऊपर इस तरह से, तो एंटीबॉडी नेवर बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस एंटीजन, इट मे बी लाइक दिस, इट इज हैविंग दिस शेप, it never be complementary to that, and it have antibody B। सो किसी आदमी का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी। अब आप सोचेंगे क्यों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सोचना चाहिए ऐसा क्यों बच्चों। सपोज मैं अभी करके दिखाता हूं आपको, ऐसा होता नहीं है कभी, पर अगर हो जाए, सपोज इफ दिस एंटीबॉडी इज कंप्लीमेंट्री टू दिस and having the shape of this triangular shape, then it will get attached to this like this, और वो क्लम्पिंग कर देगी, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी विल देयर, कोगुलेट हो जाएगा वो, और जो ब्लड वेसल है ब्लॉक हो जाएगा, और इट मे लीड टू द डेथ। तो if it is same, then it may cause agglutination, the process is called agglutination or clumping। So naturally we don't have this condition, we have the condition like this। agglutination क्यों नहीं होता हमारे अंदर, क्योंकि हमारे पास तो अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडीज कैसी होंगी बेटा, यस बिल्कुल सही बोला आपने, वो कभी भी उसकी कंप्लीमेंट्री शेप में नहीं होगी। देखो वो एंटीबॉडी मैं ऐसे बना देता हूं यहां पे B, the shape is not complementary to that, and if any individual have एंटीजन B, अगर मैं एंटीजन B को देखो ऐसे बना देता हूं इस तरह से शेप में, if it is antigen, so there will never be antibody B, there should be antibody A, which is having the shape like this, which is not complementary to antigen B। So मैं यहां भी आपको करके दिखाता हूं एक बार, अगर शेप ऐसी हो, वो एंटीजन अब B हो गया, तो एंटीबॉडी मस्ट बी A, and the shape of the antibody is like this, triangular। क्योंकि हमें तो क्लम्पिंग नहीं होने देना, नेचुरली क्लम्पिंग तभी नहीं होती है। अब आपसे प्रश्न, जिस इंडिविजुअल में यहां पे एंटीजन बी आपको दिख रहा है और यहां पे एंटीजन ए है जो मैंने ट्रायंगुलर बना दिया, ऐसा इंडिविजुअल होगा ए बी ब्लड ग्रुप वाला, है ना। तो बच्चों मुझे बताओ इसमें एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है, अगर एंटीबॉडी बी हुई, ए हुई, देन इफ एंटीबॉडी ए इज प्रेजेंट, then it will get joined with the blood group blood vessels, क्लॉग कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। इफ एंटीबॉडी ए ना होके एंटीबॉडी क्या हुआ, बी हुआ, then it will join with the antigen B। In both the condition what happen, clumping or agglutination will occur and the blood vessel got coagulated। So for that reason there is nil
or no antibody is there. And in this case, O blood group, as we know, there is no what? Antigen. There is no antigen. So, both of the antibodies, they can be there. Antibody A as well antibody B. So, यहाँ पे anti A and anti B दोनों हो सकते हैं. So, this is the concept of 4 phenotype of blood group A, B, AB and O. So, अभी तक हमें ये पता लगा कि what are multiple alleles, what are their characteristics. We can understand the concept of multiple allele with the help of the ABO blood group system in human beings, which is one of the 13 type of the system used in all over the world for the blood grouping. In world, जो Commonwealth countries, this group system is used. According to that, we have the 4 blood groups A, B, AB and O. It will be the antigen present over the RBC membrane, the particular immunoglobulin protein which decide the blood group. If that protein is A, then blood group is A. If that is B, then it should be B. If the blood group is, the antigens are A and B, then it is AB blood group. And if there is no antigen, then it is O. But remember it, never the same antigen and antibodies are present. ये कभी नहीं होगा. Antibodies, it must be B, it must be A और here. क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट इसलिए है क्योंकि एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. इसलिए यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी. इसमें दोनों ही एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज कैन बी देयर क्योंकि agglutination or clumping reaction should not occur. So this is all for tomorrow. All for today. We will meet in the next class tomorrow. तब तक के लिए सबको कोरोना नमस्कार.